Now you write down temporary jet streams टेम्परेरी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टू टेम्परेरी जेट्स मीन. कौन सी हमने डिस्कस की थी? यहाँ पे हमने दो टेम्परेरी जेट्स की बात की थी ना, यहाँ पे एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली और एक सोमाली जेट्स. ठीक है, तो इनके बारे में हम देखेंगे. ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स आर नैरो विंड्स temporary jet streams are narrow winds with the speed of हाँ temporary तो tropical का बोला, temporary बोला ना, फिर से बोलती हूँ. ठीक है, temporary jet streams are narrow winds with speeds of more than with speed of more than 94 km per hour, speed of more than 94 km per hour in upper, middle और lower troposphere. ठीक है, upper, middle और sometimes in lower troposphere. ठीक है, they are temporary, so they can occur in sometimes in upper atmosphere, sometimes in middle and sometimes in the lower troposphere. ठीक है. Next point, they are few, comma, important ones are tropical easterly jet and Somali jet. These two jet streams play an important role in the formation. These two jet streams play an important role in the formation and progression of Indian monsoons. ठीक है, अब लिखो व्हाट इज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट. इसके बारे में लिखेंगे व्हाट हैपेंस ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट. इसको एक और नाम से जानते हैं, आप लिख लो अफ्रीकन ईस्टर्ली. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिकॉज वेयर इट इज रीचिंग, किस रीजन को पहुंच रही है, फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू इट इज रीचिंग टुवर्ड्स द अफ्रीकन कोस्ट पे पहुंच रहे. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अफ्रीकन ईस्टर्ली. ठीक है, दीज आर हाई वेलोसिटी winds in the lower troposphere TEJ, I will say tropical ईस्टर्ली जेट. TEJ is a unique and dominant feature of the northern hemispheric summer over Southern Asia and Northern Africa. Southern Asia and Northern Africa. TEJ is found between 5 degree and
is found between 5 degree to 20 degree north latitude. कैन यू इमेजिन द पोजिशन कहां से? दिस इज द अफ्रीकन बेल्ट, ठीक है, ये वाला रीजन है, एंड दिस इज द सदर्न एशिया. सो टीज है यहां से यहां ये फ्लो कर रही है, यहां से कहां जा रही है इवेंट्स, यहां तक आ रही है, इस रीजन को इम्पैक्ट कर रही है. गेटिंग अपर सर्कुलर, ठीक है, कहां पे इम्पैक्ट करिए, एंड व्हाट इज द डिग्री अप्रोक्सीमेटली, दिस इज द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर ही 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में ये फ्लो करती है. गेटिंग द लोकेशन, ठीक है. इट इज अ फेयरली परसिस्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट यू राइट, it is fairly persistent in its direction. Persistent, P-E-R-S-I-T-E-N-T. It is fairly persistent in its direction and intensity from June through the beginning of October. In its direction and intensity from June through the beginning of October. Full stop. मतलब what is the time period of it is? जून में शुरू होती है and it ends till first week of October. Beginning of October तक ये prevalent होती है, ठीक है. तभी तक हमारे यहाँ मानसून सीजन होता है, रेनी सीजन रहता है, ठीक है. So it starts in the June and ends at the first week or the beginning of the equator, ठीक है. TEG comes into existence. TEJ comes into existence quickly after the TEJ comes into existence quickly after the STJ has shifted to the north. TEJ comes into existence quickly after the STJ has shifted to the north of the Himalayas. Has shifted to the north of the Himalayas. Full stop. The formation of TEJ results in the formation of TEJ results in the reversal of upper air circulation pattern and leads to the quick onset of monsoons. And leads to quick onset means beginning, onset of the monsoons. Written is the paragraph clear? समझ में आया? जो मैंने बताया उसी चीज को लिखा है, ठीक है. रौनक, कैन यू रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे TEG के बारे में? कैसे क्रिएट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, किस वजह से ये जनरेट हो रही है, क्या है ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट? लोअर एटमॉस्फेयर. और बताइए, और आगे बताइए क्या हो रहा है इस लाइन नहीं पढ़नी है, लाइन तो मैंने डिक्टेट की है, आप अपने टर्म्स में समझाओ. हाँ बताओ क्या होता है. हाँ यही इमेज, आप यही इमेज देख के बताइए, यही है, इसी की बात कर रहे थे हम. TEG कौन सी वाली लाइन है, पहले मेरे को ये बताओ. है ना, तो वो कैसे क्रिएट हो रही है? ये तो लाइन आपको दिख के यहाँ से यहाँ आ रही है, ये जेट स्ट्रीम है, ठीक है. तो ये कैसे क्रिएट हुई, क्यों आया ये?
इधर से विंड तो ऊपर उठ रही है, कहीं जा नहीं रही है, विंड क्या है ऊपर उठ रही है यहाँ से। हाँ, तो ये शुरुआत कैसे हुई, ये बन तो रहा है पर ये सिचुएशन क्रिएट कैसे हुआ? निंग एक्सप्लेन व्हाट इज TEJ। लैंड गॉट हीटेड अप, ओके, हाँ ओके। Wind will go from, हाँ। So why we have studied in the normal intertropical convergence zones also, है ना, same thing we have studied. What is this difference? Why I am explaining you about this TEG? What is happening? Special jets is getting created. Where it is getting created? Why it is? The shift of this STG has shifted to the north. Because of that, this jet has been created. This is a temporary jet, not a permanent wind system, right? So as this STG shifted up, it has created space above. ठीक है? The air from above has risen. ठीक है? A creation. What has created a high pressure above? Then high pressure fast winds will start moving towards this direction, towards this area. ठीक है? So that wind system, that jets are named as tropical easterly jets. हाँ, टेम्पररी जेट्स ये जो क्रिएट हो रही है, यहाँ से जो विंड्स आ रही है, ये सिस्टम को हमने क्या नाम दे दिया? ट्रॉपिकल है, नाम ट्रॉपिकल है। ये मैंने तो ट्रॉपिकल नाम बोला था ना, हेडिंग तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, देयर फीचर इज दे आर टेम्पररी, इट्स नॉट परमानेंट सिस्टम। ठीक है, TEJ मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट लिखा है। ठीक है, जब मैं लाइन बोली तो टेम्पररी जेट स्ट्रीम्स बोला था, मतलब इसके फीचर बता रही थी मैं, उसमें शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए। गेटिंग? टेम्पररी एज इन परमानेंट, और परमानेंट विंड सिस्टम भी है रिटर्न, हमने वो परमानेंट पढ़ी थी। दीज आर दी टेम्पररी जेट्स, दैट इज अ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट एंड द सोमाली जेट। नेक्स्ट वन, ये क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड के लिए, व्हाट इज द ड्यूरेशन? फ्रॉम जून से अक्टूबर तक ही ये रिमिट रहती है, उसके बाद फिर ये एब्सेंट हो जाती है, फिर विजिबल नहीं होती। सिर्फ इस टाइम पीरियड के लिए वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में दिखती है। ठीक है, सर्कुलेशन, विंड सर्कुलेशन में विजिबल होती है। ठीक है निशा, गेटिंग? वहां पे यहाँ पे ये चीज, ये वाला कौन सा डायग्राम कह रहे हो? अच्छा, मेरे को ड्रॉ करके बोल रही हो। अच्छा, हमने क्या देखा था? ये सर्कल देखा था। ठीक है, ये STG ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स आ रही हैं। ठीक है, इन समर दिस विल शिफ्ट टुवर्ड्स द विच डायरेक्शन? वेयर इट विल गो? इट विल गो टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है, ठीक है, अवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज बिटवीन एट अराउंड ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल रीजन में लोकेटेड है। व्हाट हैपेंस? द हिमालयस विल बी लाइंग बिलो दिस। ठीक है, इन द समर सिचुएशन, दिस इज द समर। ठीक है, दीज आर द हिमालयस, राइट? So in summer season what will happen? The STG will shift towards the north. ठीक है, getting? क्या कंफ्यूजन हो रहा है? करना कोई नहीं कंफ्यूजन है? ये विंड्स जो आ रहे हैं ऊपर, ये क्या है? इससे नहीं टकराएंगे, इसके ऊपर नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द हिमालयस पहुंच जाएंगे एंड दे विल रीच टुवर्ड्स द टिबेटन। ठीक है, व्हाट विल अपोजिट विल हैपन इन द विंटर? In the winter situation, this is the earth, right? Here we have Himalayas supposedly. ठीक है, this STG will be coming down, okay, to the normal position, and they will be coming in the southern slope. This is the southern slopes of Himalayas. ठीक है, this is STG. ठीक है, this is what is happening. कुछ हिमालयस के ऊपर चली जा रही है in the summer, and in the winter season it is coming back to its original position. ठीक है, in the winter season this is the shifting of the STJ. Getting? यहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर पहले 20 डिग्री पे था नॉर्थ में, तो ऊपर जाके ये 25 डिग्री पे पहुंच जाती है। गेटिंग? जो सब ट्रॉपिकल हमारी जेट्स जो मूव करें उनका लोकेशन चेंज हो रहा है। Is it clear? Shifting, this is the shifting from the in the summer what is happening, in the winter this is happening. In the winters it will this Himalayas बीच में आएंगी and they will be causing rain. This wind system will cause rain in the winter to the Indian subcontinent. Getting? Sobo? Is it clear? Any other doubt? Ning? Clear? Repeat what I said. What was the shifting of the STG?
What was this shifting of the STJ? Speak normally in the normal pace. Huh? Speak again. You speak. I did not get it. Speak normally, na? Slowly, slowly you speak. We cannot understand. Others are trying to hear you. Speak. You are done, but I am not done. Na? You speak it again. I am not done yet. Because I have not understood that you have understood. है ना? So you have to repeat it again. Not, don't tell me about ITCZ. You tell me about STJ. Subtropical Westerly Jets. Tell me about jets के बारे में बताओ. Again, Parnam. Speak something. No, what? Again, I have told you what is happening. This is the weather changes that is according to seasons. The shifting of belt is happening. Simple thing. What is happening? These belts are shifting. The movement of belt is getting impacted. ठीक है, सिंपल सा कॉमन सेंस लगाना कि अगर गर्मी हो रही है तो क्या होगा, ठंड हो रही है तो क्या होगा. बिकॉज ऑफ दैट ये जेट्स भी इम्पैक्ट होती है. बहुत ठंड होगी तो जेट्स भी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे. बहुत गर्मी होगी तो जैसे हम अपनी जगह बदल देते हैं, गर्मियों में घूमने चले जाते हैं ना कहीं ठंडी जगह पे, उसी तरह ये विंड भी सिस्टम भी है. गर्मी होगी तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे और ठंडी होगी तो नीचे की तरफ आ जाएंगे. इतना याद रखना, ठीक है. इज दिस क्लियर? अब अफ्रीकन के बारे, उसके बारे में अब लिख लो, सोमाली जेट के बारे में. ठीक है, सोमाली जेट. राइट डाउन अबाउट दी सोमाली जेट. सोमाली जेट कहां पे फ्लो कर रही थी, कहां से जा रही थी? दिस इज दी अफ्रीका. दिस वाज अफ्रीका, राइट. यहाँ पे सोमाली है, सोमालिया है ना कंट्री, वहीं से इसी के बेसिस पे इसको नाम दिया गया है, क्योंकि ये क्या करेगी, हमारे हाई प्रेशर से रीजन को और एक्सेंचुएट करेंगे. ये साउथ वेस्ट विंड्स को दे विल एक्सेंचुएट, मतलब इट विल फास्टन द मूवमेंट ऑफ दिस साउथ वेस्ट विंड्स. ठीक है, एसटीजी मूव हुआ, वहां पे टीईजेड क्रिएट हो, उसके बाद हमारी ये सोमाली जेट भी क्रिएट हो जाती है. ठीक है, चलो वी विल राइट आउट द प्रोग्रेस ऑफ southwest monsoon winds. The progress of the southwest monsoon. The progress of the southwest monsoon towards India is greatly aided by the onset of Somali jet. The progress of the southwest monsoon towards India is greatly aided by the onset of the Somali jet. ठीक है, it was observed. These are very important concepts, इसलिए मैं specifically लिखवा रही हूँ सबके बारे में. Okay, go and revise them, read them again and again. Okay, it was observed to flow फ्रॉम मॉरिशस. मॉरिशस की स्पेलिंग गलत मत लिखना, ठीक है. मेनी ऑफ यू विल मेक MAURITIUS, MAURITIUS. ठीक है. It was observed to flow from Mauritius and the northern part of the island of. It was observed to flow from Mauritius and the northern part of the island of Madagascar. ठीक है. Next point. It strengthens permanent high near Madagascar. It strengthens permanent high near Madagascar and also helps to drive. It strengthens permanent high near Madagascar and also helps to drive southwest monsoons towards India. Southwest monsoon winds towards India
at a greater pace and intensity. Towards India at a greater pace and intensity. Next point, the importance of the low level jets. The importance of the low level jet arises from the fact. The importance of the low level jet arises from the fact that its path around 9 degree coincides with the zone of coastal upwelling. ठीक है, coincides with the zone of coastal upwelling. ठीक है, एक और लाइन लिख लो, as the strong winds drive away the surface coastal waters, as the strong winds drive away the surface coastal waters towards the east, as the strong winds drive away the surface coastal waters towards the east, comma, extremely cold water from the depths of the sea rise upwards. From the depths of the sea rise upwards. Cold water from depths of the sea rise upwards. अब देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे, what is happening. ये आप समझे, यहाँ पे सोमाली करंट चल रही है, ठीक है. इट इज अ जेट, मतलब ये हवा है, काफी तेजी से हवा चल रही है, राइट. दिस इज द अफ्रीका, राइट. यहाँ पे मैप में देखो, इस वाली सिचुएशन की हम बात करें, ये सिचुएशन, ठीक है, यहाँ वाली कंडीशन, ठीक है. यहाँ से हमारा क्या है, ये सदर्न वो पेनिनसुला है, राइट. यहाँ से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इज द मैप क्लियर यहाँ पे. हियर व्हाट वी हैव दिस मेडागास्कर, ठीक है. द विंड्स, दिस इज द सोमाली जेट, ठीक है. गेटिंग, ये कौन सी जेट है हमारी, सोमाली जेट, ठीक है. वी नो देयर, यहाँ पे क्या है, ओशन है, ठीक है. यहाँ पे पानी है ना नीचे. तो what is the last point I have dictated? What is the last point? Repeat. ठीक है. तो what is happening? The wind is, this is a wind system, right? अब wind जब move करती है, it moves the ocean also. ठीक है. Surface water, that is the mechanism to generate currents. We have studied in the ocean currents, right? How currents are generated. Because of the wind is a major factor for creating the ocean current. So this will push the water towards the east direction. ये क्या है, हमारा eastern side है, right? So this water, this is the direction I am talking about, the water. ये मैंने किसको मार्क किया ऑरेंज से, जो जेट से जा रही है हमारी. ये क्या है, हवा है, जेट काफी तेजी से जा रही है. वो जब पानी के कांटेक्ट में आएगी, इट विल मूव वाटर ऑल्सो, इट विल मूव द वाटर. सो इट विल मूव द वाटर एट अ वेरी फास्ट स्पीड. तो इसको, इस करंट को, ये जो मूव करेगा यहाँ से, इसको हम सोमाली करंट कहेंगे. करंट और जेट में क्या है, जेट क्या है, हवा है, करंट क्या है, वाटर का मूवमेंट है. जब ये सरफेस को तेजी से मूव करेगा, surface of the water, it will move in a specific direction. I have told you difference in the current क्या होता है. This is the movement of the water in a specific direction, right? So this is called Somali current. It is named because this jet is moving in that direction. It is pulling the water towards the east direction. And then what will happen? ये पानी ऊपर उठ गया, ठीक है. द पानी पुश हो गया वहां पे. देन यहाँ से क्या है, अपवेलिंग होगी. जो डेप्थ ऑफ द ओशन है, वहां से भी पानी क्या है, ऊपर की तरफ उठ रही है.
mechanism, getting the mechanism, what is happening? Oceanic circulation and water current are also moving together. Getting, if sometimes word will come Somali current, you will relate how it is formed. If they will ask Somali jet, can you define what it is? समझ में आया क्या है difference? ठीक है. And another thing that is working here, ब्लू से, और यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ से ऊपर अपर सर्कुलेशन में क्या सिस्टम चल रहा है हमारा, यहाँ से तो यहाँ हाई प्रेशर था, ठीक है, सरफेस करंट का, और यहाँ पे हमारा लो प्रेशर था, ठीक है. तो सरफेस विंड्स, हमारी ये जो सरफेस विंड्स है वो ऐसे जा रही है साउथ वेस्ट. दिस इज द मूवमेंट ऑफ द साउथ वेस्ट विंड्स, ठीक है. डायरेक्शन क्लियर हो रहा है. और ऊपर वाले विंड्स का डायरेक्शन क्या होगा हमारे, दिस इज दी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट दैट इज फ्लोइंग. यहाँ पे क्या है हमारा, ऊपर क्या है, हाई प्रेशर है, और यहाँ इस हाई प्रेशर के ऊपर क्या होगा हमारा, लो प्रेशर, अपर एयर सर्कुलेशन. दिस इज द सिचुएशन दैट इज हैपनिंग. ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है. एनी डाउट्स? सोबो, इज इट क्लियर व्हाट इज हैपनिंग? जेट तो यहाँ से जो विंड्स आ रही है ना, ऊपर से क्या है उसको पुश कर रही है, तो उसकी वजह से ये एक और जेट, टेम्पररी जेट, हाँ उसको, हाँ ये जेट जो एक साइकिल तो कंप्लीट होगा ना, यहाँ से ये जेट नीचे जाएगी, ऊपर से वहां से जेट एक क्रिएट होगा, तो ये विंड्स आपस में क्या तेजी जैसे घूमने लगती है. इस वजह से पूरा क्या है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स क्रिएट होने लगता है. हम क्या देख रहे हैं, फैक्टर्स देख रहे हैं. वी आर लुकिंग एट द फैक्टर्स फॉर द मॉनसून. हमने क्या क्या देखा, पहला रिपीट करो, पहला हमने देखा डिफरेंशियल हीटिंग, ठीक है, हाँ, ITCZ का मूवमेंट देखा, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट हो रहा था, ठीक है. ये सारी मॉडर्न थ्योरीज है, ये साइंटिफिक एडवांसमेंट जो हो रही है, धीरे धीरे ये चीजें हमें पता चल रही है कि अच्छा ये यहाँ पे ऐसे हवा फ्लो कर रही है, यहाँ पे ऐसे विंड जा रहा है, तो हम इसको अब मॉडर्न थ्योरीज में कंसीडर करते हैं. जो ITCZ का कॉन्सेप्ट हो गया, STJ का कॉन्सेप्ट हो गया, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ये हमारी मॉडर्न रिसर्चेस के बेसिस पे डेवलप हुआ. पहले ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं थे, बस लास्ट 20 ईयर्स में इनका इनोवेशन मतलब पता चला है. आफ्टर यू कैन से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 60s 70s में ये चीजें फाइंड की गई कि ऐसे भी विंड सर्कुलेट हो रही है, ठीक है. तो यहाँ से एक जेट काफी तेजी से मूव करती है और एक जेट नीचे की तरफ से काफी तेजी से मूव करती है, और इसी जेट के मूव की होने वजह से हमारा वाटर जो है पुश होता है, और इसको हमने एक और नाम दे दिया करंट का, जो लोकलाइज करंट है, ठीक है, उसको हमने सोमाली करंट नाम से दे दिया. हाँ, जैसे आप बताओ क्या होगा, वार्म होगा कि कोल्ड होगा? वार्म होगा ना, ट्रॉपिकल रीजन में है, ठंडा होने की कोई वजह ही नहीं है. यहाँ पे तो हवाएं तेजी से गर्मी से चल रही है ना, तो ये वार्म एरिया में, ट्रॉपिकल रीजन में, तो ये वार्म होगा, ठीक है. मैकेनिज्म क्लियर हुआ? सोबो, आर यू गेटिंग, रिपीट व्हाट आई सेड अगेन, व्हाट इज हैपनिंग? दिस शुड बी क्लियर बिकॉज इट इज, आई नो इट इज डिफिकल्ट, पहले बार में क्लियर नहीं होता है ऑब्वियसली, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ. पहले मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी कराया ताकि आप ओशन पैटर्न को समझो, ठीक है. फिर मैंने ओशन करंट्स बताए कि ओशन, फिर उसका रिलेट करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हम देख रहे हैं, ताकि धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एक एक करके आप इंडियन कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि इंडियन कॉन्सेप्ट, इंडियन मॉनसून कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. अभी भी इसके ऊपर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिसर्च करते रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा. देखते ना मॉनसून की फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, हमें नहीं पता कि सच में इतना मॉनसून आएगा कि नहीं आएगा. ये सब फैक्टर्स है, इनको मॉनिटर किया जाता है. पहले तो हम SCG को मॉनिटर करते रहते हैं, फिर हम देखते हैं कि विंड्स कैसे जनरेट हो रही है, फिर हम एल नीनो को मॉनिटर करते हैं, हम ला नीना को मॉनिटर करते हैं. उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन होता है कि इस साल मॉनसून कितना क्या होगा. समझ रहे हो, बहुत कॉम्प्लेक्स. बाकी जगह तो सिंपल फ्रंटल मिल रही है, बारिश हो रही है, या एक पैटर्न चल रहा है सर्कुलेशन का, प्लैनेटरी विंड्स का. बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा अलग तिकड़म चलता है, क्योंकि ये इंडिया है ना, इसीलिए अलग चीजें होती है यहाँ पे. ठीक है, यही एक रीजन हो सकता है ना. इतना बाकी जगह तो इतना ये मूवमेंट नहीं है कहीं पे, है कि नहीं, इतने सारे जेट्स क्रिएट नहीं हो रहे, सब छोटी छोटी बात, सीधी सीधी जेट्स चल रहे थे, यहाँ पे आके अपने अलग डायरेक्शन में घूम रही है कि नहीं. और हमें पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है रौनक, है ना. हमें तो एग्जाम देना यूपीएससी का. चलो हाँ, सोबो यू विल रिपीट व्हाट वी स्टडीड, ओके. हाँ, you define this whole cycle. What is happening in this image? You will have to explain me what is happening in this image. Surface water, ठीक है.
So that movement of the direction also you will have to specify. Answers जब लिखोगे तो you will mention the direction. मैं क्यों directions mention कर रही हूँ, इससे आपकी knowledge पता होगी कि हाँ सही direction में बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो. Wind से is moving यहाँ से west से कहाँ, east की तरफ move कर रही है, ठीक है. And this tropical easterly कहाँ से move कर रही है, east से वेस्ट की तरफ, ठीक है. सो द डायरेक्शन शुड बी ऑल्सो क्लियर. इसीलिए मैं बार बार ड्रॉ करके बताती हूँ कि आपको डायरेक्शन से क्लियर हो कि व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द एयर, ठीक है. Now what is happening at the upper? This is happening at the lower surface. Surface means what is happening in the upper atmospheric circulation? In upper atmosphere. From there high pressure, more high pressure will be created. From there a jet will be created that will be moving in the easterly direction from east to west, ठीक है. That jet, a new jet, temporary jet will be created, that is called tropical easterly jet, ठीक है. And it will be moving from Indian subcontinent towards the African western coast of the eastern coast of the Africa, okay. इसीलिए इसको हम अफ्रीकन ईस्टर्ली भी कहा जाता है, ठीक है. ईस्टर्न अफ्रीकली जेट. इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट्स? निशा समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इसके बारे में हमने लिख भी लिया है, ठीक है. अब एक और चीज हम देखते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में. यहाँ तक कोई डाउट है? ये सारी चीजें एक बार देख लो. ये चीजें तो हमने देख ली. ये मैंने सिचुएशंस दिखाई है. यहाँ पे एक बार इमेज में देखो व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, ये तो मैंने एसटीजी को दिखाया. एसटीजी नॉर्थ में क्या होगा, ये बाइफर्केट हो जाएगा, नॉर्थ में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. दिस इज द सिचुएशन ऑफ द मार्च, ठीक है. जून में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, देख रहे हो, ये सिचुएशन होती है हमारी. काफी सारी विंड्स चलती हैं, ठीक है. ऊपर सर्कुलेशन में यहाँ से भी विंड ऊपर उठ रही है, ठीक है. यहाँ से विंड उठ रही है, यहाँ आ रही है, ठीक है. यहाँ से फिर इधर हाई प्रेशर रीजन में जा रही है, और यहाँ से विंड क्या है, यहाँ लो प्रेशर में जा रही है. साइकिल कंप्लीट हो रहा है. समझ रहे? सारे फैक्टर्स मैंने बताया ना. यहाँ से उठ के यहाँ भी जा रही है, यहाँ से उठ के इधर भी आ रही है, फिर यहाँ से इधर आ रही है, और यहाँ से ये ऐसे जा रही है. तो पूरा ये कन्वेक्शन सेल चल रहा है, ठीक है. ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का भी और सोमाली का भी जेट, ठीक है. तो ये सिचुएशन होती है हमारी किस टाइम की हम बात कर रहे हैं, जून की, ठीक है. फिर अब ये देखो विंटर्स में क्या होता है. विंटर्स की सिचुएशन हम देखेंगे अक्टूबर, ठीक है. अक्टूबर में ही हो गया. दिसंबर में अब देखो ये सिचुएशन है. समर का तो खत्म हो गया, सारा क्लियर वेदर सिचुएशन है. दिसंबर में क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. रेमिनेंट्स ऑफ फ्रंटल सिस्टम ब्रॉट बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. अब यहाँ पे हमने देखा था ना मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे हमारा क्या है, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है. हमारे टेम्परेट रीजन में व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशंस होती है, साइक्लोन होते हैं. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं ना. कुछ उसके सिस्टम्स निकल के वहां से निकल के क्या होते हैं, जेट के साथ मिल जाते हैं, और हमारे इंडिया की तरफ ये जेट स्ट्रीम से फ्लो करने लगते हैं, ठीक है. अगर कुछ जैसे फ्रंटल मास मिलते हैं ना आपस में, what happens, warm air masses from the tropic meet the cold air mass from the temperate region, ठीक है. there only frontal rain happens, so few systems get trapped in this jet stream and they move towards this Indian subcontinent. कुछ मॉइस्चर ये कहाँ से उठाती है, अपने वेस्ट मेडिटेरेनियन सी है. ये देख लो यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ से जो विंड्स हैं जो क्या है मॉइस्चर लेंगे, और यहाँ से किस तरफ आएंगे, इंडिया की तरफ आएंगे, ठीक है. तो ये मॉइस्चर लेडन विंड्स होती है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वर्ड से क्या है, वेस्टर्न है, मतलब ये वेस्ट से आ रही है. डिस्टर्बेंस मतलब इट इज एन अनस्टेबल सिचुएशन, मतलब यहाँ पे एयर क्या है, सबसाइड नहीं हो रही, राइज होती है, ठीक है. तो दिस इज एन अनस्टेबल सिचुएशन, ठीक है. कहाँ से लेंगी, मेडिटेरियन से लेंगी, कैस्पियन और ब्लैक सी. अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या कोल्ड वेव सिचुएशन ये क्रिएट करती है. जब जून की कड़ाके की ठंड पड़ती है तो ये क्या अपने साथ ठंडा मॉइस्चर और बारिश लेके आते हैं. कहाँ पे बारिश करेंगे, इस वाले रीजन में, यहाँ पे. और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो विंटर क्रॉप्स हमारे होते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रेन लेके आते हैं. जैसे यहाँ पे हमारा हिमाचल और पंजाब वाला रीजन हो गया, उत्तराखंड का तराई, यूपी और कुछ पार्ट्स ऑफ बिहार और कुछ पार्ट ऑफ आसाम में क्या है, रेन लेके आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है.